talking about non-stoichiometric defects, where I tried to make you understand. Yes, I switched it on. Where I tried to make you understand non-stoichiometric defects means these are those defects where the stoichiometry gets disturbed, where the stoichiometry gets changed, the stoichiometry is affected. So when I'm saying stoichiometry, that is the ratio in which the elements are reacting, that is going to get disturbed. Okay, then such type of your defects are called as nothing but your non-stoichiometric defects. Is there any problem with this? No, sir. No, sir. Under the non-stoichiometric defect, the first defect which we are going to see, okay, because many people have asked me like, sir, we didn't understand F center, we didn't understand F center. So let us just have a look at F center once again. Okay, so let us understand this. Sir, let us say I am taking a container and in this container, this is a closed container, and in this container, say for example, I am having NaCl crystal, okay, and along with that, say for example, I am having sodium vapors. Now, what will happen? Actually, your sodium vapors and the NaCl which is present over here, both will come in equilibrium. That means your NaCl will form Na plus Cl minus. Your sodium atoms will form, sodium will lose one electron and it will become Na plus. Now what is happening, you see, these sodiums which are present in the vapor phase, they are losing electrons and they are becoming Na plus. इसमें किसी को कोई doubt है? No, sir. नहीं. No, sir. Okay, so sodium is becoming Na plus. Then tell me, in a NaCl crystal, sodium किसको surround करता है? क्लोरीन को surround करता है कि नहीं? Yes, sir. So Yes. there will be one Cl minus and उसको चारों तरफ से Na plus, Na plus, Na plus, Na plus surround करता है. Now what we are trying to tell you is, if in place of your Cl minus, okay, actual में Cl minus को surround करना चाहिए तुम्हारा सोडियम, but in place of Cl minus, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को अगर सोडियम सराउंड कर देता है, that means by mistake, this is what a defect is. In place of a Cl minus, if electron is occupying its position, that means अब Cl minus के जगह पे इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ हमारे Na plus, Na plus, Na plus, Na plus आ जाते हैं और ये क्रिस्टल का एक पार्ट बन जाता है. तो तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट जहां पे Cl माइनस होना चाहिए था लेकिन आ कौन गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस पोजीशन को, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं. बताइए कितने लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, दैट मींस से मेरे पास एक फुल क्रिस्टल है. देखिए मेरे पास एक NaCl का क्रिस्टल बनाता हूं मैं तुम लोगों को. देखो एक Cl माइनस है, इसके चारों तरफ Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, फिर एक और Cl माइनस, फिर इसके चारों तरफ फिर से Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, फिर यहाँ पे Cl माइनस, फिर यहाँ पे Cl माइनस, फिर यहाँ पे Cl माइनस. तो अब यहाँ पे जो Cl माइनस आना चाहिए था लेकिन वहां पे कौन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया. बस यही डिफरेंस हो गया. तो वहां पे वो क्या बना दिया, वो एक F सेंटर बना दिया. Okay, this spot
where you should have had an Cl minus, but you are having an electron in place of a Cl minus, in place of an anionic lattice point, there you are having an electron being captured. Such spot is called as nothing but an F center. अब बताइए कितने लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. ऑल राइट, चलिए, तो एफ सेंटर आने के वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ देखो। तो अभी मैं मेरा Cl माइनस और Na प्लस में काउंट कर रहा हूं, तो से फॉर एग्जांपल मैंने काउंट किया, मेरा सोडियम आ गए 100 एटम्स, बट क्लोरीन को काउंट करूंगा तो 99 ही आएंगे, बिकॉज एक क्लोरीन के जगह पे कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया सॉलिड में। क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. तो एक क्लोरीन Yes, sir. के जगह पे आ गया एक इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वहां पे मेटल एक्सेस के जैसा दिख रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब बताइए, क्या सब लोगों को मेटल एक्सेस डिफेक्ट समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. I am. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. Now that we have understood our metal excess defect, okay, हम लोग ये भी समझ गए थे कल कि सर मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने से हमारे क्रिस्टल्स जो है वो कलर शो कर सकते हैं, ओके, और ये कलर क्यों शो करते हैं? दैट डिपेंड्स अपॉन वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन सा रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं एंड कौन सा रेडिएशन रिलीज करते हैं, उसके ऊपर उसका कलर डिसाइड होता है। चलिए, अब हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट का एक और टाइप देखेंगे। Okay, this is also metal excess defect, but this is the second type in which metal excess defect create होता है। Say for example, मेरे पास जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल्स हैं, Zn2 plus, O2 minus, Zn2 plus, okay, Zn2 plus, O2 minus, Zn2 plus. Understand, this is not the exact representation of कैसे क्रिस्टल के अंदर है, ये बस मैं तुम लोगों को समझाने के लिए ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे। से फॉर एग्जांपल मेरा क्रिस्टल जो है Zn2 plus O2 minus, Zn2 plus O2 minus, ऐसे एक क्रिस्टल है जो कि जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है। अब ना क्या हुआ, मैंने इस जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल को लेके मैंने क्या किया? हीट कर दिया। ध्यान से देखिए आप लोग, what happens when zinc oxide crystal is heated? Now understand, when I have heated this, what happened is the O2 minus, that is our oxide ions, what happened is the oxide ions, they will get converted into dioxygen. That means O2 minus और O2 minus क्या करेंगे? O2 बन के बाहर निकल जाएंगे। ओके, जब भी मैं जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल को मैं हीट करता हूं, तो हीट के वजह से क्या होता है, मेरा ऑक्सीजन जो है, ओके, O2 जो है वो क्या कर रहा है सर? वो तुम्हारा क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के बाहर चला जा रहा है। कैसा बाहर चला जा रहा है? इन द फॉर्म ऑफ O2 वो बाहर चला जा रहा है। तो O2 माइनस था, O2 माइनस था, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। देखिए, 2O2 माइनस will form O2 and they will release 4 electrons. ये है तुम्हारा इक्वेशन। O2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, दूसरा O2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, दोनों ऑक्सीजन साथ में O2 बना देंगे और वो लोग एस्केप हो जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जाके आपका इंटरस्टेशियल साइट्स ऑक्युपाई कर लेंगे। ओके, मतलब क्या हुआ, यहां से ये ऑक्सीजन, ये O चला गया, ये भी O चला गया, और आपके इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया? ये इंटरस्टेशियल साइट्स को ऑक्युपाई कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन से फॉर एग्जांपल। अब यहां पे भी मैं जिंक इज टू ऑक्सीजन का रेशियो अगर निकालूंगा,
जिंक अगर मेरे 100 है तो ऑक्सीजन 2 कम रहेंगे, दैट मींस मेरा 98 रहेंगे। तो 98 इसका हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मींस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जिंक 1 ऑक्सीजन 0.98। तो इसमें भी हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, ऐसे लग रहा है जैसा मेरा जिंक एक्सेस हो गया और मेरा एनायन जो कि ऑक्सीजन है वो कम हो गया। तो ये भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट के जैसा हमें दिख रहा है। देख रहे हो आप लोग, हाँ सर। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, sir. Now I want you people to have a look at your textbooks, or else जिनके पास textbooks नहीं है, just I am going to give you a note. Please write down. Write down. Zinc oxide, which is white in color, zinc oxide, which is white in color, turns yellow on heating. Turns yellow on heating. Why? करके क्वेश्चन मार्क दीजिए। जिंक ऑक्साइड which is white in color at room temperature turns yellow on heating. Why? Turns yellow on heating. Why? आंसर लिखेंगे। On heating, the white colored zinc oxide, on heating, the white colored zinc oxide loses oxygen and hence it turns yellow, and hence it turns yellow. Next लिखिए full stop and then write down the excess zinc 2 plus ions move to the interstitial sites, and the excess Zn2 plus moves to the interstitial sites and the electrons will move to the neighboring interstitial sites, and the electrons will move to the neighboring interstitial sites. ध्यान से देखिए, मैं समझाऊंगा यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है? सबसे पहले क्या आप लोगों को समझ में आया why this becomes yellow? Yes, Yes, sir. sir. loses oxygen. Yes, sir. White colored zinc oxide, as it is losing oxygen, okay, it is turning yellow. That is first thing. Second thing, so oxygen जब lose होता है तो सबसे पहले कहां से lose होता है sir? ऑक्सीजन सबसे पहले तुम्हारे सरफेस से लूज होता है। तो से फॉर एग्जांपल यहां से एक ऑक्सीजन चला गया, ये गैप बन गया, यहां पे एक ऑक्सीजन चला गया, ये गैप बन गया, ठीक है? अब ये जो एक्सेस जिंक 2 प्लस बच गए हमारे, ध्यान से देखिए, ये जो एक्सेस जिंक 2 प्लस ऊपर में बच गए हमारे, ये कहां चले जाएंगे? ये इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाएंगे, ये अंदर में, ये जिंक ऑक्साइड के इंटरस्टिशियल साइट्स में। और जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स बच गए वो क्या करेंगे? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो यहाँ पे तुम्हारा जिंक 2 प्लस चला गया तो उसके नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा जिंक 2 प्लस गया तो उसके नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट्स में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। तो this is an important 2 marks question for your final board examinations.
ओके बहुत बार इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है सर दे विल आस्क यू व्हाट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ओके एक्सप्लेन इट बाय टेकिंग जिंक ऑक्साइड एज एन एग्जांपल तो आप लोग आराम से एक्सप्लेन करेंगे जिंक ऑक्साइड ऑन हीटिंग loses its oxygen in the form of O2 the oxygen atoms which are going out creates two vacant spots or creates vacant sites now the excess zinc 2 plus ions will move into the interstitial sites and the electrons which are left by this oxide ions move to the neighboring interstitial sites क्या ये समझ में आएगा Yes, sir. Yes, sir. okay now once that we have understood metal excess defect next we will try to understand metal deficiency defect next we will try to understand metal deficiency defect क्या सब लोगों को ये समझ में आया कि इस पूरा कंपाउंड में दो एग्जांपल्स हम लोग देखे मेटल एक्सेस डिफेक्ट में दोनों में हम लोगों ने देखा दैट द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज चेंजिंग दैट मींस द रेशियो 1:1 1:2 जो था अब वो 1:0.95 0.98 या 2.1 ऐसे वो चेंज हो जा रहा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट चलिए नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज योर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ये कौन सा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ये हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का सेकंड टाइप है मेटल एक्सेस डिफेक्ट फर्स्ट टाइप था जिसमें कि दो थे एक है एफ सेंटर और एक है ऑन हीटिंग अब ये सेकंड टाइप है जिसको कि हम लोग बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट now let us understand what is this metal deficiency defect okay and how it is created चलिए देखते हैं अब सोचिए सर मेरे पास तो सबसे पहले व्हाट आर द कंडीशंस सर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कौन शो करेगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज शोन बाय दोस cations which can have or which can show multiple oxidation states those compounds which can show multiple or exhibit multiple oxidation states only those cations can show your metal deficiency defect ये याद रखिएगा मेरा कहने का मतलब है say for example सोडियम का सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 तो सोडियम हम लोगों का मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो नहीं कर सकता ओके say for example आयरन है मेरे पास now iron shows two different oxidation state Fe+2 भी हो सकता है Fe+3 भी हो सकता है समझ में आ रहा है Yes, sir. okay. Yes, sir. अब देखिए सर say for example मेरे पास Fe+2 O2- मेरे पास फेरस ऑक्साइड FeO का एक क्रिस्टल है Fe+2 O-2 Fe+2 O-2 ओके O-2 Fe+2 ये एक क्रिस्टल है मेरे पास Fe+2 O-2 Fe+2 and O-2 in this way say for example I am having a crystal this is the crystal अब क्या हुआ बाय मिस्टेक एक स्पॉट पे Fe+2 के जगह पे क्या आ गया Fe+3 आ गया फिर से एक और स्पॉट में Fe+2 के जगह पे क्या आ गया Fe+3 आ गया तो देखिए दो Fe+3 अगर आ गए हमारे क्रिस्टल के अंदर मतलब टोटल इनकमिंग चार्ज कितना हुआ +6 यस और नो Yes, sir. Yes, sir. तो +6 चार्ज बाहर गया होगा तो देखिए इस स्पॉट में से एक Fe+2 चला गया वहां पे +3 आ गया इस स्पॉट से एक Fe+2 चला गया वहां पे +3 आ गया तो आउटगोइंग है +2 ++2 +4 इनकमिंग है +3 +3 +6 तो इसके वजह से क्या होगा एक और जगह से तुम्हारा Fe+2 जो है वो बाहर चला जाएगा चार्ज को बैलेंस करने के लिए दो Fe+3 आए दैट मींस +6 चार्ज अंदर आया तो बाहर भी कितना जाना चाहिए Fe+6 मींस +6 ही बाहर जाना चाहिए
तो 2 Fe2 प्लस बाहर गए तो +4, थर्ड वाला गया तो +6। तो 2 जहां पे गया वहां पे Fe3 प्लस 3 प्लस आ गए और एक स्पॉट क्या हो गया, वैकेंट रह गया। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोग ध्यान से देखिए, अगर मैं आयरन इज टू ऑक्सीजन मैं काउंट करूंगा तो अब एक वैकेंट स्पॉट आयरन का बच गया। मतलब आयरन अगर तुम्हारा 99 है, ऑक्सीजन तुम्हारा कितने हैं, 100 है। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ sir. Yes, sir. तो Yes, sir. यहाँ पे हम लोगों को कैसे दिख रहा है सर, ये मेटल डिफिशियंसी जैसा दिख रहा है। सर ये हम लोगों को लग रहा है जैसे मेटल कम है और हमारा नॉन मेटल जो है वो ज्यादा है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। Yes, sir. अब ध्यान दीजिए सर, हम लोगों को क्यों लग रहा है कि ये हम लोग इससे पहले भी पढ़े हुए हैं, ऐसे क्यों लग रहा है हम लोगों को? हाँ, हम लोग हाँ, इससे सर। पहले भी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन हम लोग उसको किस में पढ़े? हम लोग इम्प्यूरिटी डिफेक्ट पढ़े। क्या पढ़े सर हम लोग? Impurity. अब समझते हैं सर, हाउ इम्प्यूरिटी डिफेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम आर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। समझते हैं। सबसे पहला चीज आप लोगों को याद रखना है, इन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट व्हाट हैपेंड इज द कैटायन जो अंदर आया दैट वाज कंप्लीटली अ डिफरेंट मेटल एटम। तो देखिए वहां पे जो कैटायन अंदर आ रहा था वो स्ट्रोंशियम था, वो सोडियम नहीं था। बट Yes, यहां sir. पे 2+. देखो, बोलो बोलो, जो भी बोल रहा था अभी कुछ। No, sir. मैं भी स्ट्रोंशियम ही बोल रहा था बस, और कुछ। ओके, सो क्या हुआ सर यहाँ पे? देखिए क्या हुआ ना सर, वहां पे जो एलिमेंट आके डिस्प्लेस कर रहा था, जो एक कैटायनिक साइट को ऑक्युपाई कर रहा था, वो कोई दूसरा एलिमेंट था, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोले, इम्प्यूरिटी बोल दिए। वो इम्प्योर मेटल था या एलिमेंट था, इसीलिए हम लोग इम्प्यूरिटी करके बोल दिए उसको। बट यहाँ पे देखो आयरन था, आयरन ही आया, यहाँ पे बाहर से कोई इम्प्यूरिटी नहीं आया, यहाँ पे सेम आयरन ही आया, इसीलिए इसको इम्प्यूरिटी डिफेक्ट नहीं बोलते हैं, इसको सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं। सर इम्प्योरिटी डिफेक्ट में दूसरा कोई एलिमेंट आ जाएगा और मेटल डेफिशिएंसी में सेम ही होगा ना सर एलिमेंट? 100% करेक्ट, 100% करेक्ट। ओके, राइट। किसको मांग रहा है रे साहिल आईडी? अनिकेत? यस सर, मतलब साहिल अभी मैसेज किया है सर आईडी। तुमको? यस सर। तो भेज दो उसको। और वो यस अभी तक क्लास अटेंड नहीं किया है, 8/28 को वो तुमको आईडी मांग रहा है, वाह। ओके चलिए ठीक है। तो आई होप सब लोगों को मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट समझ में आया। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वंस तुम लोगों को मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट भी समझ में आया, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। किसका? सॉलिड्स का हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज depending upon the capacity of conducting electricity, your solids can be divided into 3 major types. One is if they can freely allow the electricity to conduct with a very low resistance, then we will call them as conductors. If they will not at all allow the flow of electrons through them, then we will call them as insulators. And if they are having a resistance in between your conductors and insulators, somewhere in between, then we will call them as semiconductors. So depending upon whether my given element will allow
the flow of electrons through it. Okay, if whether it is allowing the flow of electrons through it with a very low resistance, or it is not at all allowing it to flow, or whether it is partially allowing the electrons to flow. Under these conditions, we divide them into three important categories. One is your conductors, the second is your insulators, and the third is your semiconductors. Okay, so have a look. Number one, conductors. The solids which are having a conductivity. चलिए आज मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत फिजिक्स का भी बताऊंगा। तो ये कंडक्टिविटी है क्या? तो याद कीजिए, हम लोग सब अपने 10th क्लास में पढ़े हैं, रेजिस्टेंस R is equals to nothing but rho L by A। क्या आप लोग ये पढ़े हैं? Sir, the resistance of the wire is directly proportional to the length, is inversely proportional to the area of cross section. तो हम लोगों ने पढ़ा R is resistance and rho, this rho is called as resistivity। चलिए ध्यान से देखिए, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टिविटी? ध्यान से देखिए, आप लोगों को इसका मीनिंग इसके डेफिनेट मींस इसका फॉर्मूला में ही पता चल जाएगा। Resistivity is the resistance of a material। ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, resistivity is the resistance of a material of 1 unit length and 1 unit area of cross section। Resistivity is resistance of a material having 1 unit length and 1 unit area of cross section। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? Yes, sir. इन द सेम वे लोगों ने क्या डिफाइन किया? फिजिक्स में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? देखिए तो बताइए आप लोग मुझे, एक मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा सर। माइक ऑन करके बोलो श्वेतालिन, क्या हुआ? सर अभी जो आप लिखे सर 1 यूनिट पे 1 एरिया, सर वो समझ में नहीं आया सर। उससे पहले क्या बोला? बोलो क्या सुनी उससे पहले मैंने क्या बोला? सर वो 1 यूनिट पे 1 एरिया होता है सर, और कुछ समझ में नहीं आया। If I take a conductor of 1 unit length, मतलब exactly 1 centimeter या 1 meter, and 1 unit area of cross section, और उसका area of cross section exactly 1 centimeter square। एक material का exactly 1 unit, that means 1 centimeter length का और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एक छोटा सा यूनिट अगर मैं लेता हूं और इसका रेजिस्टेंस अगर मैं फाइंड करता हूं तो क्या आएगा? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इनटू 1 by 1, बिकॉज L by A, L है 1 और एरिया है A भी 1, तो 1 by 1। तो अभी रेजिस्टिविटी क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया कि नहीं? So resistivity is nothing but resistance of a conductor having 1 unit length and 1 unit area of cross section। यस सर। चलिए, दिवाकर बोल रहा है सर रेजिस्टेंस कम होने से कंडक्टिविटी ज्यादा होगा ना? वेरी गुड, करेक्ट, 100% करेक्ट सर। रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस आर रेसिप्रोकल टू वन अनदर। तो हम लोग अभी क्या डिफाइन करते हैं पता है आप लोगों को? कंडक्टेंस G is nothing but 1 by रेजिस्टेंस। ओके, बिकॉज रेजिस्टेंस ज्यादा होने से कंडक्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम होने से कंडक्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक गिवन Yes. मटेरियल में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या है? वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो को अलाउ नहीं कर रहा है। बट एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट देखो तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मतलब कंडक्टेंस बहुत कम है, और रेजिस्टेंस बहुत कम है मतलब कंडक्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो को अलाउ कर देगा। तो इसीलिए हम लोग डिफाइन किए कंडक्टेंस इज नथिंग बट
the reciprocal of resistance. Conductance is nothing but the reciprocal of resistance. तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला अभी क्या हो जाएगा, देखो तो G is equals to 1 by R का फॉर्मूला पुट कर देंगे यहाँ पे। R क्या था, रो L by A। तो हम लोगों को क्या आएगा सर, हम लोगों को आ जाएगा G is equals to ओके 1 by रो A by L आ जाएगा, आएगा कि नहीं? यस सर। अब ये 1 बाय रो को, ठीक है, 1 बाय आर को हम लोग बोल दिए कंडक्टेंस, तो 1 बाय रो को हम लोग बोलेंगे G इज इक्वल्स टू 1 बाय रो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से, इसको क्या बोलते हैं, कप्पा, कप्पा, ए पी पी ए, कप्पा, कप्पा इनटू A by L, where kappa is nothing but conductivity, kappa is nothing but conductivity, and conductivity is nothing but the reciprocal of resistivity, that is 1 by rho। ध्यान से देखिए कितना आसान चीज है सर, R is equals to रो L by A है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारे 10th से ही हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं सर। टुडे वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी दैट कंडक्टेंस इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, conductance is nothing but reciprocal of resistance, तो conductance is nothing but 1 by rho L by A, जो कि हो जाएगा 1 by rho कप्पा, तो conductance is equals to कप्पा into A by L। क्या ये सबको समझ में आया? यस सर। ये मैं थर्ड चैप्टर में फिर से यूज करूंगा और तभी पूछूंगा, नहीं बताया आप लोग ना बहुत मार खाएंगे आप लोग। ठीक है, अच्छा एक और बात, अभी रिकॉर्डिंग सब लोगों को दिखा रहा है ना, मतलब जो रिकॉर्डेड है? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो कप्पा इज इक्वल्स टू 1 बाय रो। चलिए अब देखिए हमारे कंडक्टर्स क्या होते हैं। द सॉलिड्स विद कंडक्टिविटीज रेंजिंग फ्रॉम 10 to the power 4 to 10 to the power of 7 आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स। अच्छा ये मैं बताऊं उससे पहले, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है रे? रोम है सर। ओम मीटर। ओम मीटर, ओके। उसी तरह से आपका कंडक्टेंस का यूनिट होता है ओम का उल्टा, उसे बोलते हैं मो, मो गाय के जैसा मो, है ना, ओम, ये हो जाएगा मो, MHO, ओम मीटर इनवर्स, ओके, जिसको कि हम लोग कंडक्टेंस का यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। एक्चुअली ओम का इनवर्स को हम लोग बोलते हैं मो, MHO, मो मीटर इनवर्स। तो कंडक्टेंस का यूनिट होता है मो मीटर इनवर्स, वेयरएज रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम मीटर। क्या ये समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट आर कंडक्टर्स? Sir, conductors are those materials which easily allow the flow of electrons through them। ये था पुराना बच्चा डेफिनेशन, अब नया डेफिनेशन क्या देंगे सर? Conductors are those which are having conductivities। कंडक्टिविटी मतलब क्या सर? कप्पा, कप्पा इज कंडक्टिविटी, पता है कि नहीं हम लोगों को? पता है कि नहीं रे? यस सर। यस सर पता है। तो कंडक्टिविटी वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 10 to the power 4 to 10 to the power of 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओके। जो मटेरियल का कंडक्टिविटी का वैल्यू 10 to the power 4 से 10 to the power 7 के बीच में होता है, उसको हम लोग कंडक्टर्स बोल सकते हैं, ओके। तो याद रखिए हमारे जो मेटल्स हैं, we already know this, all of our metals are very good conductors। तो metals generally उन लोगों का कंडक्टिविटी 10 to the power 7 के ऑर्डर में रहेगा, 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स रहता है। इसीलिए ओके, जो भी मेटल्स जिनका कंडक्टिविटी 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के रेंज में रहेगा, उन्हें हम लोग गुड कंडक्टर्स बोलते हैं। तो याद कीजिए
तो देखिए आप लोग, सर व्हेन वी गो टू द मार्केट, हैव यू एवर बॉट वायर फ्रॉम मार्केट्स? ओके, कभी जाके Yes, sir. इलेक्ट्रिकल वायर Yes, खरीदे हैं? sir. आप लोग जाएंगे इलेक्ट्रिकल शॉप में, तो आप लोगों को एक रेंज ऑफ वायर्स दिखाएगा। वो बोलेगा ये 10 रुपीज मीटर है, ये 20 रुपीज मीटर है, ये 50 रुपीज मीटर है, ये 80 रुपीज मीटर है। तो उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है परसेंटेज ऑफ कॉपर। प्योर कॉपर का जो वायर होगा उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा। तो प्योर कॉपर का जो वायर है वो बहुत ही कॉस्टली होता है और तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ही कम आएगा। लेकिन कॉपर में कुछ मटेरियल्स ऐड करके कोई एलॉय का अगर मैं एक वायर बना देता हूं तो वो थोड़ा सस्ता मिलेगा, लेकिन तुम्हारा करंट बिल बहुत ही ज्यादा आएगा। क्या ये बात समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। नाउ लेट अस मूव अहेड। तो कंडक्टर्स के बारे में क्या पता चला? सर these are the materials which can easily conduct electricity. They have the conductivity ranging from 10 to the power 4 to 10 to the power 7. Sir, metals which are having a conductivity of order 10 to the power 7 and greater are generally called as good conductors. Okay, once we have understood this, let us understand what are insulators. हमें अच्छे से पता है insulators are those materials which do not conduct electricity or have very low conductivities. तो इनका conductivity का range होता है 10 to the power -20 से लेके 10 to the power of -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ध्यान से देखिए इनका कंडक्टिविटी कितना छोटा है, 0.00000 समथिंग। सो ऑब्वियसली इनका कंडक्टेंस भी बहुत कम रहेगा। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next comes your semiconductors. Semiconductors are such type of materials, sir, ये under कुछ specific conditions, under some specific conditions they will conduct electricity and in other conditions they will not conduct electricity. तो इनका कंडक्टिविटी जो है वो कौन सा रेंज में रहता है? सर इनका कंडक्टिविटी ना ही इंसुलेटर्स के इतना लो रहता है, ना ही कंडक्टर्स के इतना हाई रहता है। इनका रहता है इन बिटवीन 10 to the power -6 to 10 to the power of 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके, तो सर remembering the ranges for conductors, insulators and semiconductors is important. Okay, and then remembering that conducting materials can easily conduct electricity, insulators will not at all conduct electricity, and semiconductors will conduct electricity under certain conditions. Okay, Yes, sir. क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आगे बढ़ते हैं। Why does ओके, अब मैं आप लोगों को कुछ बात बताऊंगा, ध्यान से देखिए। क्या आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का एक फॉर्मूला डिराइव किया था? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द nth ऑर्बिट हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में डिराइव किया था -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, सतीश मोहंती क्लास में नहीं है क्या रे? कौन है सतीश का दोस्त? सतीश से बात किसका किसका होता है? कोई नहीं है? मेरा ध्रुव, हाँ ध्रुव सर एक उसको काम फोन करो। करने से उठा नहीं रहा है सर वो। हाँ सुनो, आज फिर से एक बार कोशिश करो उसको फोन करने का, अगर उठाता है उसको समझाओ। वो उसको पता नहीं उसको क्या हो गया है, वो उसको समझाओ। मैं तो वैसे भी कोशिश किया समझाने का। अभी स्टार्टिंग है, 12th का अभी स्टार्टिंग ही है। अभी से ढंग से सारे क्लासेस अगर अटेंड करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों को बाकी सारे चैप्टर्स समझना। ये हर किसी को मैं बोल रहा हूँ सर। रेगुलरली जो बंदे
या जो लड़कियां क्लास अटेंड करेंगे उन लोगों को कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगेगा। मतलब ना आप अगर 2-3 दिन 4 दिन का भी क्लास छोड़ देंगे ना तो आप लोगों को लगेगा बाप रे सब लोग बहुत पढ़ लिए और मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, वो फीलिंग आ जाएगा। तो इसीलिए क्लासेस कभी नहीं बंक मारेंगे, क्लासेस को नहीं छोड़ेंगे। आज भी देखो ना, आज भी 10 लोग क्लास में नहीं है, अभी भी around 12 people are still not in the classroom. So bad it is actually. People are working so hard in order to teach you. Think about this. If you people are not at all interested, then why will teachers take so much of pain and teach you online, sir? Teaching online is the most difficult thing. Okay, it is very very difficult to make people understand, okay, without seeing them face to face. बहुत मुश्किल चीज है, हमें एक ही चीज को 4-5 बार बताना पड़ता है, हम लोगों को बार बार रिपीट करना पड़ता है, हम लोगों को अलग अलग एग्जाम्पल्स लेना पड़ता है सेम चीज को समझाने के लिए। तो आप लोग पूरा ध्यान दीजिए। ओके राइट, तो हम लोगों ने क्या देखा था? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय द फॉर्मूला -13.6 into z²/n²। तो अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं आप लोगों को एक बार निकाल के दिखाऊंगा E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7। ओके, हम लोग ये सारे वैल्यूज एक बार निकालेंगे, वहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बात मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिए आप लोग। E1 आ जाएगा -13.6, कोई प्रॉब्लम? हाँ E2 आ जाएगा -3.4, ध्यान से देखिए आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। E3 आ जाएगा तुम्हारा -1.5। यस ओके, एक कैलकुलेटर पास में रखिए और बताइए E4 कितना आ रहा है? -13.6 डिवाइडेड बाय 16 कितना आ रहा है देखिए। 0.85 है। -0.85। नेक्स्ट, डिवाइडेड बाय 25 करके बताओ कितना आ रहा है? सर 0.544। -0.544। ओके, एंड देन डिवाइडेड बाय 36 करके बताओ कितना आ रहा है? सर 0.377। -0.377। अब ना मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिए। सर दीज आर सो लॉजिकल थिंग्स, यू वोंट फाइंड इट इवन इन योर टेक्स्ट बुक्स, सो बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट दिस। देखिए अब मैं निकाल रहा हूं डेल्टा ई का वैल्यू। ओके, दैट इज E2 माइनस E1 कैलकुलेट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट E3 माइनस E2 कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट E4 माइनस E3 कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट E5 माइनस E4 कैलकुलेट करेंगे। Someone with a calculator just keep calculating and then you will tell me the values. Okay, E6 माइनस E5, यहां तक हम लोग ये सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तुम लोगों को अभी अभी पता चलेगा कि मैं कितना इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर रहा हूं। चलिए, E2 माइनस E1 कितना आ रहा है बेटा? सर -10. प्लस प्लस प्लस, E2 माइनस E1, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। यस सर। हाँ, 10.2। 10.2। E3 माइनस E2 जल्दी। बेटा 50 लोग हैं मेरे क्लास में, 1. कोई नहीं बता रहा है। कितना है? 1.9 सर। 9। नेक्स्ट E4 माइनस E3 0.65 0.65। ओके, नेक्स्ट E5 माइनस E4 0.3.
फिर 0.31. 0.31. Next, E6 minus E5. 0.163. 0.16. अब ध्यान से देखिए, मैं यहां से आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग देखिए. The energy gap between the first energy level and the second energy level is 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब देखिए, ये अगर मेरा न्यूक्लियस है, यहां पे देखिए, ये अगर मेरा न्यूक्लियस है, तो ये अगर मेरा फर्स्ट बोर ऑर्बिट है, ये अगर मेरा फर्स्ट बोर ऑर्बिट है, इसके और सेकंड बोर ऑर्बिट के बीच में गैप बहुत ज्यादा है. लेकिन सेकंड बोर ऑर्बिट थर्ड बोर ऑर्बिट के बीच में गैप जो है वो सिर्फ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर थर्ड बोर ऑर्बिट और फोर्थ बोर ऑर्बिट के बीच में जो गैप है वो सिर्फ 0.65, मतलब सेकंड वाले से भी कम. और थर्ड और अभी फोर्थ और फिफ्थ के बीच में 0.31, मतलब इन दोनों से भी कम. नेक्स्ट वाले में और कम, नेक्स्ट वाले में और कम, नेक्स्ट वाले में और कम. मतलब जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं, द एनर्जी लेवल्स आर कमिंग क्लोजर 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 क्लोजर. क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देखिए, इससे कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा आप लोगों को. ध्यान से देखिए, इफ दिस इज माय न्यूक्लियस, जस्ट नाउ आई हैव सीन, अगर ये मेरा फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सर मेरा फर्स्ट एनर्जी लेवल और सेकंड एनर्जी लेवल के बीच में गैप जो है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का है, वो बहुत ज्यादा है. बट मेरा सेकंड और थर्ड लेवल के बीच में जो एनर्जी गैप है वो ना बहुत कम है. देखिए, सिर्फ इतना ही एनर्जी गैप है. अब मेरा थर्ड और फोर्थ के बीच में एनर्जी गैप इससे भी कम है. फोर्थ और फिफ्थ के बीच में उससे भी कम है. इसी तरह से आप थोड़ा दूर चले जाएंगे तो आपको लगेगा सारे एनर्जी लेवल्स जो हैं एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहा है. ऐसा लगेगा कि नहीं हम लोगों को? जब एनर्जी गैप बहुत कम हो जाएगा तो हमें लगेगा कि नहीं, ये सब एक दूसरे के साथ जस्ट बिल्कुल गैप नहीं है, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं. ऐसा लगेगा कि नहीं? Yes, sir. अब जो वैलेंस सेल होता है, ये अगर मेरा वैलेंस सेल है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब ऐसे गैप में रहते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड मतलब जहां पे एनर्जी जो तुम्हारे एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं वो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन नहीं हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड. और जहां पे ये ऐसे एक दूसरे को ओवरलैप कर चुके हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड. कंडक्शन बैंड. और इन दोनों के बीच में ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं गैप. ओके, सो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड. मैं अभी तुम लोगों को, अभी नहीं, मैं कल तुम लोगों को समझाऊंगा. सर बैंड थ्योरी के हिसाब से हम लोग कैसे बताएंगे कौन है कंडक्टर, कौन है इंसुलेटर एंड कौन है सेमीकंडक्टर, ये मैं बताऊंगा कल. लेकिन क्या आप लोग सबसे पहले ये समझे सर वैलेंस बैंड किसको बोलते हैं, कंडक्शन बैंड किसको बोलते हैं? क्या ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. ध्यान से देखिए, आपका वैलेंस बॉन्ड में अगर मेरा इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे वैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट जाने में इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, बिकॉज इनका एनर्जी गैप ज्यादा है. लेकिन कंडक्शन बैंड में वंस इलेक्ट्रॉन पहुंच गया इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट, इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट, वो इजीली जा सकता है, बिकॉज उनके बीच में कोई एनर्जी गैप है ही नहीं. दे आर ऑलमोस्ट कोइंसाइडिंग विद वन अनदर. तो इसीलिए जिनके केस में कंडक्शन बैंड बहुत ही नजदीक रहेगा वैलेंस बैंड से, उन्हें हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं. ये मैं कल बताऊंगा तुम लोगों को. जिसमें गैप बहुत कम रहता है इन दोनों के बीच में, उस गैप को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन जोन. ये बताऊंगा मैं. बट फिलहाल आप लोगों को ये समझना है, सर आई कैन इमेजिन, सर आपने अभी जैसे बोला आई कैन क्लोज माई आईज एंड आई कैन इमेजिन, सर देयर इज अ न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम. उसके बाद पहला सेल ना सर है, पहला सेल और दूसरा सेल के बीच में बहुत गैप है,
दूसरा और थर्ड के बीच में थोड़ा गैप है, थर्ड और फोर्थ के बीच में और कम गैप है, फोर्थ और फिफ्थ और कम, फिफ्थ और सिक्स्थ और कम, सिक्स्थ और सेवेंथ और कम, लेकिन सेवेंथ के बाद ऑलमोस्ट कम 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 कम, दैट मींस हमें लग रहा है जैसे कि वो एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट ओवरलैप कर जा रहे हैं। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. That is what you had to. I hope you people have understood. So